All right, good morning, students. Today we're going to be starting with English Unit 4. We are starting with a very, very beautiful poem. It's called A Thing of Beauty is a Joy Forever. All right, A Thing of Beauty is a Joy Forever. It's a poem by a poet known as John Keats. All right, but before you write this poem, students, I want you to write down an objective in your notebooks. Our objective for today is students will be able to comprehend the poem A Thing of Beauty is a Joy Forever and listen to an explanation of the same. All right, you will be able to comprehend the poem A Thing of Beauty is a Joy Forever by listening to an explanation of the same. तो इस poem का explanation अभी मैं करने वाला हूँ, मैं पढ़ के explain करूँगा and you will listen to it and comprehend and understand the poem. All right, so students will be able to comprehend the poem A Thing of Beauty is a Joy Forever and answer questions on the same. Alright. So, students, I'm going to be reading the poem, I'm going to explain it as well. You have to pay attention to what I'm saying, all the meanings I'm discussing. Alright. जो भी meanings मैं बोल रहा हूँ तुम अपने notebook में भी लिखो. Alright. And try to understand the poem and what it means. Okay. So let's begin. A Thing of Beauty is a Joy Forever, alright, by John Keats. Now, who is John Keats? He is an English poet who was one of the most popular British romantic poets. वो British थे, alright, John Keats जो थे वो British थे, and he was known as a romantic poet. Now, romantic poet का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो किसी से प्यार करते थे and everything? No, alright. Back then, the industrial revolution was happening, alright. लोग मशीनों का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज डेवलप हो रहे थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वरिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ. लोगों को सिर्फ जिंदगी में काम 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 सिर्फ इन चीज़ों का पड़ा रहता था. पीपल वांटेड टू अर्न मनी, पीपल वांटेड टू बिकम रिच, पीपल वांटेड टू बाय थिंग्स. राइट. लेकिन ये जो पोएट्स थे, कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स ना इस तरह के लाइफ से थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे. देवर लाइक आई डोंट वांट टू लिव सच अ लाइफ जहाँ पे मैं सिर्फ काम करूँ, पैसे कमाऊँ, चीज़ें खरीदूँ और खुश रहने की कोशिश करूँ. नो, I want to live a life with nature. I want to live a life with beautiful things around me. All right. So romantic poets were those poets who wrote about a lot of nature and imagery and how human life has just gone away and become sad now because everyone is only thinking about working and machines and technology. लेकिन कोई भी nature के बारे में नहीं सोच रहा, कोई भी अपने आसपास के दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा. All right. And that is exactly why these people are known as romantic poets, because they used to talk about nature in a very beautiful way with a lot of images, with a lot of beautiful words, ताकि लोगों को realize हो कि nature बहुत important है और हमारे आसपास के environment और लोग बहुत important है. दुनिया में सिर्फ पैसे कमाना, मशीनें, टेक्नोलॉजी, सिर्फ ये चीज़ें important नहीं है. And that's why John Keats is also known as a romantic poet. Alright. Now, let's begin reading the poem, students. I want you to listen carefully. जब मैं वर्ड्स के मीनिंग्स बता रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को, राइट डाउन द मीनिंग एंड देन कंटिन्यू द वीडियो. ऑलराइट. नाउ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and a sleep. Alright, पहले चार लाइन मैंने पढ़ लिए. Now let me read it again and explain it. A thing of beauty is a joy forever. किसी भी तरह का ब्यूटीफुल चीज़ जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशी लाती है. ऑलराइट, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज मेक अस हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई सॉ वेरी नाइस शर्ट. ऑलराइट, और उस शर्ट को देख के मुझे बहुत खुशी हुई. सो these things will always bring joy to me. All right, for example, let's say if I like food, all right, और खाना मुझे बहुत पसंद है तो वो हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल रहेगा and it will always bring me joy and happiness. All right, so a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never. उस चीज का कभी वैल्यू कम नहीं होगा, उसका लवलीनेस कम नहीं होगा. all right, it will never stop increasing. all right, it will never pass into nothingness. वो कभी मेरे लिए मरेगा नहीं, वो हमेशा मेरे लिए जिंदा रहेगा. उस चीज़ को देख के मुझ में हमेशा खुशी आएगी. देयर विल नेवर बी अ मोमेंट ऑफ सैडनेस व्हेन आई सी दैट थिंग, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप. वो कभी कहीं भी जाएगा नहीं, वो कभी भी मिटेगा नहीं हमारे मन से, हमारे दिमाग से, बट इट विल ऑलवेज कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. अभी बावर का मतलब क्या है? अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज. अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज. ऑल राइट, दैट्स द मीनिंग ऑफ अ बावर. ऑल राइट. सो ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो हमेशा हमारे लिए सुकून देंगी. ऑलराइट, इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ों को शेडी ट्री के तरह से कंपेयर किया जा रहा है. इट्स अ मेटाफॉर. ऑलराइट, इट इज सेइंग कि
ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है एक पेड़ की तरह होती है, वो हमें शेड देती है ताकि हम सुकून से जी सके और सुकून से सो सके. ऑलराइट, now let's move on to the second stanza. Full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of human dearth. Alright, now full of sweet dreams, किस तरह का नींद देती है हमें ये beautiful चीज़ें? Full of sweet dreams and health and quiet breathing. You see the kind of words being used here, students. The poet is using very vivid imagery. Alright, कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ होगी वो हमें किस तरह की नींद देगी? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, अच्छा हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यू विल बी एबल टू बी वेरी पीसफुल. Therefore on every morrow are we reading. Morrow का मतलब क्या है ना? वी heard the word morrow somewhere. Tomorrow, day after tomorrow, day after tomorrow. तो हर आने वाले दिन पे are we reading. Reading का मतलब क्या है? रीत का मतलब होता है WREATH का मतलब होता है और फ्लावर्स का सर्कल जो होता है, तुमने देखा होगा फ्लावर के मार्केट में जब तुम गए होगे, लोग फ्लावर के सर्कल्स भी बेचते हैं कि एक सर्कुलर शेप में फ्लावर्स को टाई करके बेचते हैं. दैट्स अ रीत. ऑलराइट, सो हियर द पोएट इज सेइंग देयरफॉर एवरी डे वी आर आल्सो मेकिंग सच अ रीत. हम लोग भी इसी तरह एक फूलों का रीत बना रहे हैं. ऑलराइट, एंड व्हाई वी मेकिंग इट? बिकॉज अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्थ. अ फ्लावरी बैंड, ऐसे ही हम ब्यूटीफुल चीज़ों का कलेक्शन करके एक बैंड बनाते हैं हमारे लिए. ऑलराइट, फ्लावर का बैंड कैसा होता है, फ्लावर का सर्कल कैसा होता है, उसी तरह से हम ब्यूटीफुल चीज़ों का एक सर्कल, एक कलेक्शन बना के हम अपने लिए रखते हैं. वाई? टू बाइंड अस टू दी अर्थ, ताकि हम अर्थ पे खुशी खुशी जी सके, ताकि वी कैन स्टे ऑन दिस अर्थ हैप्पीली स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ ह्यूमन दर्थ. ऑलराइट, फिर भले ही डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या? इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर. ऑलराइट, इन स्पाइट, फिर भले ही हमें निराशा हो, सैडनेस हो ऑफ द इनह्यूमन दर्थ. ऑलराइट, इनह्यूमन दर्थ यानी शॉर्टेज. दर्थ का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज. सो भले ही हमारे जिंदगी में खुशियों की कमी हो, खुशियों का शॉर्टेज हो, ऑलराइट, बहुत सारा निराशापन हो, बहुत सारा सैडनेस होगा. डिस्पॉन्डेंस का मतलब सैडनेस एंड निराश होना. ऑलराइट, सैडनेस, निराशा होना, डिस्पेयर. ऑलराइट, despite the shortage of happiness, despite the shortage of noble natures and of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. All right, so of noble natures, आजकल नोबल यानी अच्छा नेचर, अच्छे नेचर वाली चीज़ें कुछ हमें मिलती ही नहीं है. ऑलराइट, हर चीज़ के पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ऐसा कोई बुरा साइड होता है, किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होता है. ऑलराइट, सो अच्छी चीज़ों की कमी के बावजूद, alright, in spite of all this sadness, in spite of all the human in spite of the shortage of things that are of good quality, of good nature, alright, of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for us searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. तो ये सब gloomy days यानी sadness होने के बावजूद भी अनहेल्दी वेज एंड ओवर डार्केंड वेज, हमारी ज़िंदगी कैसे बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, लेजी हो चुकी है. ओवर डार्केंड वेज, हमारे जो रास्ते रहते हैं, हम रास्ते मतलब नॉट रोड्स एंड हाईवेज हियर. ओवर डार्केंड वेज मतलब जिस तरह से हम लोग जीते हैं, हमारा लाइफ बहुत सैड हो चुका है, हम लोग गुस्से में जीते हैं, एंगर में जीते हैं, डर में जीते हैं हमेशा. मेड फॉर अस सर्चिंग. लेकिन इन और हम इसी अंधेरे में, इसी सैडनेस के अंधेरे में, इन्हीं सब बुरी चीज़ों में हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है, क्या है, हम खुश क्यों नहीं है, वाई एम आई सैड, वाई एम आई एंग्री, मुझे इतना स्ट्रेस क्यों है. ऑलराइट, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, भले ही ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है, सैडनेस, शॉर्टेज ऑफ गुड नेचर्ड पीपल एंड थिंग्स, all the unhealthy ways that we are living, all the dark feelings that we have, ये सब के बावजूद some shape of beauty moves away the pall. ना pall का मतलब क्या है? A sheet spread over the dead. all right, मतलब मरे हुए लोगों पे जो हम बेडशीट लगाते हैं उनको कवर करने के लिए. all right, तो उसी तरह से ये जो हमारे सैडनेस के, जो यहाँ पे यू कैन सी स्टूडेंट, देयर इज वन मोर मेटाफॉर हियर. ऑलराइट, सैडनेस, ये जो बुरी फीलिंग्स होती है, जो अंधेरे रास्ते होते हैं जिसपे ह्यूमंस अभी चलते हैं, जिसपे हम लोग चलते हैं, वो एक बेडशीट की तरह कंपेयर किया कि वो हमें कवर करते हैं और हम किसी मरे हुए इंसान से
बेहतर नहीं है, ऑल राइट, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग एज इफ वी आर डेड, वी आर नो लॉन्गर हैप्पी, हमें कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती, ऑल राइट। लेकिन वो जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी भी तरह का ब्यूटीफुल चीज़ अगर हमें पता है, इफ वी हैव सीन इट एंड इफ वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, इट मूव्स अवे द पॉल, उस बेडशीट, उस सैडनेस के बेडशीट को, सैडनेस, एंगर, डर के बेडशीट को वो हमेशा के लिए हटा देती है फ्रॉम आवर लाइफ, ऑल राइट, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ऑल राइट। वो ब्यूटी का जो चीज़ है वो किस से हटा देता है, उस सैडनेस को, उस फीलिंग्स ऑफ एंगर को, हमारे खुद के रूह से या हमारे आत्मा से ये सारे बुरी फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस को हटा देती है वो। फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट सच द सन, सच द मून, trees old and young sprouting a shady boon, all right. Now the poet is talking about the things that are beautiful, all right. So such the sun, such the moon, trees old and young sprouting a shady boon. पोएट क्या बोल रहा है कि सन है, मून है, अभी एग्जाम्पल दे रहा है कि देर आर ब्यूटिफुल थिंग्स सच एज द सन, सच एज द मून, ट्रीज है, भले वो पुराने ट्रीज हो या नए ट्रीज हो, दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। स्प्राउटिंग का मतलब है they are increasing or giving us, or they are creating more and more gifts. boon का मतलब है gift, all right. So all these beautiful things, they are constantly giving us gifts. For simple sheep, all right. who are the simple sheep? Now there's a metaphor again here. they ये जो trees है, sun है, moon है, ये simple sheep को gift दे रहे हैं. who are the simple sheep here? असली भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, but who are the simple sheep here? the human beings, all right. तो नेचर हमें ये सारे सिंपल गिफ्ट्स देती है फॉर सिंपल पीपल लाइक अस. एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन द वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स. एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर अ टाइप ऑफ फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ऑलराइट. डैफोडिल्स क्या करते हैं? हमारे नेचर को ग्रीन बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं. एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब है नदी का जो स्ट्रीम होता है, नदी, एक जो नदी होती है छोटी सी, ऑलराइट, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है. वाई आर दे ब्यूटीफुल? दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ऑलराइट. सो ये जो डैफोडिल्स है, ये जो क्लियर रिल्स है, जो क्लियर स्ट्रीम्स है, वो क्या करते हैं? खुद के लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं. कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या है? अ कूलिंग शेड, कोवर्ट यानी शेड, ऑलराइट. तो ये जो रिल है, ये जो नदी है, वो अपने आसपास की चीज़ों को कूल करती है, अपने चीज़ों को शांति पहुंचाती है. इट गिव्स देम पीस, ऑलराइट. अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी समर के खिलाफ, समर पे के समय पे वी फील वेरी हॉट, ऑलराइट. बट हियर इन दिस पोएम इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ समर, बट इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमारे नॉर्मल ज़िंदगी से जो बहुत हमें स्ट्रेस देती है, जो बहुत हमें परेशान करती है, उससे हमें राहत देती है. ये सब नदियाँ होती है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, पेड़ पौधे, सन मून होता है, ये सब हमें अच्छे से मतलब रखते हैं, ऑलराइट. नाउ द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ऑलराइट. अभी पोएट क्या कह रहे हैं कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट, इट्स अ टाइप ऑफ फर्न, ऑलराइट, जो बुशेस होते हैं, ऑलराइट. The mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, alright. तो ये जो फॉरेस्ट के बुशेस होते हैं उसमें रोजेस होते हैं, ऑलराइट, जो हर साल खिलते हैं, हर महीने खिलते हैं. These are also beautiful and such too is the grandeur of the dooms. grandeur of the dooms का मतलब है कि ब्यूटी जो है आखिरी दिनों का, उनके आखिरी दिनों का, इन रोजेस का, इन बुशी का आखिरी दिनों का भी जो ब्यूटी होता है, जब वो सूख के नीचे गिरते हैं तो ऑरेंज कलर का, मतलब एक ऐसा हमें पूरा ज़मीन से ढक जाता है, और वो पेड़ पौधे के पत्ते कैसे गिरते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑलराइट. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, मतलब ये सारी चीज़ें जब मरती भी है, इवन देन इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल इन सच अ वे कि अच्छा, नाउ विंटर सीजन इज कमिंग, और द सीजन फॉर दिस फ्लावर्स आर ओवर एंड न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम अगेन, ऑलराइट. तो इनका भी एक तरह का ब्यूटी होता है, ऑलराइट, विच द पोएट इज नोटिसिंग एंड टेलिंग अस इन द पोएम. नाउ ही इज सेइंग कि ये सब जो नेचर में चीज़ें होती है, इट हेल्प्स अस गेट पीसफुल, गेट काम, ऑलराइट. एंड even when they die, even when their last day of existence, even when their last day of life is there, even that looks very beautiful to us humans, all right. But we have forgotten to notice such things because we are so busy. Now we have imagined for the mighty dead
all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. We have imagined the mighty dead. अब now this poet is talking about one more beautiful thing. We have imagined, हम लोग ने बहुत सारे stories सुने हैं, बहुत सारी चीजें imagine किए of many people of the mighty dead. Mighty यानी the strong people who have died. यानी we have our soldiers, we have our freedom fighters, we have the people who have worked very hard for us, all right. तो हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में इमेजिन करते हैं, ऑलराइट. एंड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनके बारे में जो भी हमने अच्छे स्टोरीज सुने, इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुने हैं, जो हमने सुने होंगे या पढ़े होंगे. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक. उनके स्टोरीज जो होते हैं, उनके जो ये जो चीज़ें हमने इमेजिन की, चीज़ें हमने सोची है, ऑलराइट, दे आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये जो स्टोरीज होते हैं हमारे चीज़ों को, हमें लाइफ देती है, हमें हमारे आत्मा को, हमारे बॉडीज को लाइफ देती है, हमारे जीवन को मीनिंग देती है, ऑलराइट. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यानी इट गिव्स अस एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, ऑलराइट, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ऑलराइट. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. तो ये जो स्टोरीज देते हैं हमें लाइफ देती है, और ऐसा लगता है कि हमें ये इस तरह से हमें लाइफ देती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पर्पस मिल चुका है, हमें मीनिंग मिल चुका है लाइफ में. और ये मीनिंग कहाँ से है? हेवन से आया है, ऑलराइट. हेवन के थ्रू ही हमें ये सब लोग मिले हैं, इन सब लोगों के स्टोरीज मिले हैं, और जिसकी वजह से हमारे लाइफ को मीनिंग मिलती है, ऑलराइट. नाउ नॉर डू वी feel these merely feel these essences for one short hour. No, even as the trees that whisper round a temple becomes soon dear as the temple self, so does the moon. Alright? Nor do we merely feel these essences. Nor do we merely feel these essences for one short hour. तो पोएट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ब्यूटी होती है, ये जो चीज़ें होती है, हम सिर्फ एक घंटे के लिए फील नहीं करते. नो, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple self, so does the moon. Alright? तो ये जो हम ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं, let's say we go to visit a temple, alright, but when we go into the temple we are not only seeing the beauty of the temple, उसके walls, उसके structures, उसके statues, we also look at the trees around it, the nature around it, and हम लोग सिर्फ उसी घंटे के लिए, मतलब जिस घंटे या जिस टाइम के लिए हम वो टेम्पल पे जाते हैं, सिर्फ उसी टाइम के लिए हम उस ब्यूटी को फील नहीं करते. इवन द ट्रीज अराउंड देम इन द नेचर अराउंड इट मेक्स अस फील वेरी गुड, ऑलराइट. ये जो ट्रीज होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, सनलाइट होता है जो हमें उस टेम्पल के आसपास में मिलता है, जिस भी जगह पे जाए उधर मिलता है, दे बिकम सून वेरी डियर एज द टेम्पल सेल्फ. उस टेम्पल के जितना वैल्यू है, जितना हम गॉड को वैल्यू देते हैं, उतना ही हमारा नेचर के मामले में हमारा वैल्यू नेचर के लिए बढ़ जाता है, नेचर का वैल्यू हमारे मन में बढ़ जाता है. So does the moon, the passion posy, glories infinite, haunt us till they become a cheering light unto our souls, bound to us so fast that whether there be shine or gloom or overcast, they always must be with us or we die. All right. Now the last stanza is a little complex. Let me explain it a little bit one by one. Now, so does the moon. The passion posy, glories infinite. तो द नेचर, सन, ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे मन में हमेशा के लिए रह जाती है. दे डोंट ओनली स्टे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. द पैशन पोजी ग्लोरी इन्फिनिट. ऑलराइट. नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट वन मोर ब्यूटीफुल थिंग. पोजी का मतलब है पोएट्री, ऑलराइट. द पैशन पोजी ग्लोरी इज इन्फिनिट, ऑलराइट. तो पोइट्री भी जो होती है, दिस इज पोइट्री इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग. जो चीज़ें इंसान लिखते हैं, पोइट्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड इट ऑलवेज स्टेज विद अस. हॉन्ट us till they become a cheering light. ये जो पोइट्रीज होती है, जो मून होते हैं, सन होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हमें हॉन्ट करती है, या हमें भूत के, हॉन्टिंग का मतलब है कि समवन हु इज फॉलोइंग यू और समवन हु हैज नॉट लीविंग योर माइंड, ऑलराइट. तो दे हॉन्ट us till they become a cheering light. ये चीज़ें हमारे साथ तब तक रहती है और मोटिवेट करती रहती है, एक चीयरिंग लाइट की तरह, एक रोशनी के बीम की तरह हमें चीयर अप करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है ये सब चीज़ें. अनटू अस सोल्स एंड बाउंड टू अस सो फास्ट, ऑलराइट. दे आर लाइक कनेक्टेड टू अस सोल. वो हमारे आत्मा से कनेक्टेड रहती है. एंड दे आर बाउंड टू अस सो फास्ट. दे आर टाइड टू अस. वो हमसे कभी दूर नहीं जाती ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती है, ऑलराइट. दे आर बाउंड टू अस मतलब दे आर टाइड टू अस सो फास्ट that whether there be shine or gloom overcast.
फिर भले ही तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा हो या बुरा जा रहा हो, ग्लूम ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब है स्प्रेड अबाउ, राइट, ओवर, ओवर यानी ऊपर, एंड कास्ट यानी स्प्रेड करना। तो भले ही हमारी ज़िंदगी में ऊपर से अच्छी चीज़ें आ रही है, हमारी ज़िंदगी को कवर कर रही है, या बुरी चीज़ें हमारे लाइफ को कवर कर रही है, दे मस्ट ऑलवेज बी विथ अस और वी डाई। ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती है वो हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, भले ही हमारा दिन अच्छा हो या बुरा हो। ऑलराइट, दे शुड ऑलवेज बी विथ अस और वी विल डाई। ऑलराइट, ब्यूटीफुल चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी इनकम्प्लीट हो जाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। Right, and this is the poem by John Keats. Very beautiful poem. I want students, I want all of you to read this once again, find your own meaning out of it, see how you're feeling when you're reading it in your own mind and understanding it. All right, and what I want you to do is answer these two questions here. First one is read the poem and fill the table. What are the expressions of beauty and the expressions of sorrow that the poet has used in the poem? All right, पोएट ने बहुत सारे मेटाफोर्स यूज़ किए इस पोएम में कि व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ नॉट। तो ब्यूटीफुल चीज़ों का क्या क्या एक्सप्रेशन है, जैसे कि डैफोडिल्स, रिवर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यू हैव टू लिस्ट देम डाउन। एंड व्हाट आर द एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो, सॉरो यानी सैडनेस के ऊपर क्या क्या वर्ड्स पोएट ने यूज़ किए हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स और मेटाफोर्स पोएट ने यूज़ किए हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड दैट। ऑलराइट, एंड पिक एंड रीराइट 5 लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी। कौन से लाइन से तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है, एक इमेज आता है किसी भी चीज़ का। पिक दोज 5 लाइन्स एंड लिस्ट देम डाउन। ऑलराइट, सो students, these are the 2 questions I want you to answer for today. With that, we have finished the explanation of our poem. Thank you so much for learning and listening. If you have not understood, go back, listen again to the meaning. There are many videos on YouTube and many sites on the internet also which will explain the meaning of this poem. All right. Have a nice day, all of you, and thank you so much for learning.